Students, we are discussing about the subphylum of Chordata, that is the Urochordata, and we were discussing its systems. So the next system is respiratory system. Respiratory system means that how could this animal or this specimen can exchange the gases with internal and external environment. So here it is said about the pharynx that the pharynx is involved in the feeding. So along with the feeding, pharynx is also involved in the gaseous exchange. Okay, how could pharynx is involved? Pharynx is involved because it is attached with the heart. Okay, heart lies along with the pharynx. So it is said that pharynx is also involved in the gaseous exchange. It is said about the this Urochordata that its one vessel run towards the anterior portion while the other run towards the posterior. It is very interesting about Urochordata that it is not the unidirectional throughout. Like ये unidirectional एक ही direction में इसका blood move नहीं करता. For some beats it move towards one direction, and for other some after some beats the direction of the blood moves towards the other. हार्ट एक तरफ ब्लड को मूव करता है, फिर थोड़ी बीट्स के बाद ब्लड की मूवमेंट दूसरी तरफ रिवर्स हो जाती है. Although the significance of this reversal is not understood, अभी तक उनको पता नहीं चला कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है कि फॉर सम टाइम इसकी मे बी कि हार्ट के पास इतना प्रेशर नहीं है कि वो दोनों तरफ मूव कर सके. सो फॉर सम टाइम वो एंटीरियर पोजीशन पे फॉरवर्ड करता है और फॉर सम टाइम वो पोस्टीरियर पोजीशन की तरफ हार्ट की ब्लड की मूवमेंट करता है. लेकिन अभी तक ये जो मैं बात कह रही हूँ ये मे बी है, ठीक है, इट इज नॉट कंफर्म्ड. So about when we are discussing about its excretion, so क्योंकि ये एक marine environment में रहने वाला animal है, aquatic animal है, so जब भी हम aquatic animal की बात करेंगे तो we will discuss that in water mostly the specimens or will excrete in the form of ammonia. ठीक है, ammonia में secrete होता है. इसी के साथ they have some pyloric glands. Pyloric glands हैं which are attached to the intestine, so they are so their function is in excretion. ठीक है, pyloric जो glands हैं they are involved in the excretion. Going towards the next slide, which is about the reproduction and the development of urochordates. It is said about the urochordates that they are the monoecious. So their glands are located near the intestine. Okay, and we have read about the urochordate that they have two siphons, incurrent siphon and the arterial siphon. So the genital duct obviously will open near the arterial siphon. ठीक है, excurrent जहाँ से पानी बाहर जाता है obviously वहीं से इसके gametes भी बाहर जाएंगे. They have the external fertilization. Students, again when we will discuss about the animals that live in the marine environment, in the aquatic environment, they have a media like they have the water. So the water is a media that can repel or that can disperse their sperms, that can disperse their eggs, that can disperse their gametes. So in the mostly in the mammals, mostly animals living in the aquatic environment, they follow the external fertilization. स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स जो स्पेसिमेंस हमारे पानी में रहते हैं उनके पास एक मीडिया होता है, एंड मीडिया इज वाटर, जो कि उनके गैमीट्स को मूव करें और मूव करके उनकी फर्टिलाइजेशन को क्या बनाए, एफिशिएंट बनाते हैं. तो क्या है कि उनके पास मीडिया है, इसलिए मोस्टली वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हैं. हाँ, क्योंकि ये मोनोशियस है, सो दे आल्सो फॉलो द सेल्फ fertilization, and sometimes cross fertilization is also being followed by them. The larvae is very active, okay, free swimming larvae with having all the four chordate characteristics that we have studied in the last lecture. But with the passage of time,
when they are going to become an adult, they follow the metamorphosis. Okay, there are some development. During their development, during the metamorphosis, they have to become settled. Why they have to become settled? Because their adult are settled or attached to a firm substrate. होते हैं ना किसी जैसे हमने पढ़ा था रॉक्स के साथ या शिप के साथ किसी चीज के साथ दे आर अटैच्ड होते हैं ना, किसी चीज के साथ अटैच होते। सो द फ्री स्विमिंग लार्वा हैव टू मेटामॉर्फाइज इनटू, जिससे अपने चाप को चेंज करना होता है किसमें, एक सेसाइल में, एक सेसाइल लार्वी में। So students, you can see here in this slide that in the larval stage, they are more longitudinal, while in the adult, they are circular. It means that during the metamorphosis, the internal structure also twisted some way, in rotate some way. So it is said about this species that they are rotate 180 degrees Celsius. ये अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरह रोटेट किया इन्होंने, 180 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। why they follow this rotation? Because they have to become sessile, they have to become attached, they have to be in some sand, they have to bend themselves for their digestive tract to turn into U shape. ये अपनी यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। वाई? बिकॉज दे हैव टू बी ससाइल, उन्होंने किसी चीज के साथ अटैच होना होता है। उन्होंने अगर सेंट या मर्द के नीचे जाना होता है तो उनको जो यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, दैट वुड बी मोर एफिशिएंट इन द सैंड। क्यों? ताकि वो क्या कर सकें, अपने जो एक्सक्रीट कर सकें या अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर सकें, वो इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू शेप। ओके, सो गोइंग टुवर्ड्स द सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा, वी आर स्टडिंग द फाइलम कॉर्डेटा, and in the phylum chordata we have gone through subphylum Urochordata. Next one is the subphylum Sphelochordata, and last one would be the subphylum Vertebrata. And in the subphylum Vertebrate we will then discuss some important classes. So the subphylum Sphelochordata mean head. Okay, sphello mean head. In the Sphelochordata, lanceolate are very important. Lanceolates are their representative member. Okay, it have further two genera, Asymmetron and Brachistoma, which is very famous. Amphioxus, it is also known as the Amphioxus. They are distributed in the oceans, but where? In the shallow water. There are two types of the water. One is the shallow and another one is the deep. Shallow water is not deep, where the water is not deep, where there is less depth, it is known as the shallow water, while the other is known as the deep. Okay, जो गहरा होता है उसे हम deep water बोलते हैं, जो दूसरा होता है जो कम गहरा होता है उसे हम shallow water बोलते हैं। So it is said about Brachiostomus are the whole Sphelochordata that they live in the shallow water, but the shallow water must be clean. Okay, and it is said about this that they are the same substrate. Okay, they are tadpole-like animals. Okay, like having elongated body, but flattened from where? Laterally flattened. From the right and left side, they are flattened and nearly transparent. Obviously, they live in its habitat is clear water, so they should have to be transparent to avoid the predators. बच्चे, नेचर ने क्या किया होता है, जिस किस्म का आपका हैबिटेट होता है उसी किस्म का एनिमल भी होता है, उसी किस्म का एनिमल को कैमोफ्लेज भी किया जाता है। क्यों? ताकि वो एनिमल अगेंस्ट द बैकग्राउंड कम से कम उस पर प्रीडेटर आके अटैक करे। क्या कहा गया है इसके बारे में? इसके बारे में ये कहा गया है कि ये कैसा एनिमल है, ये एक ऐसा एनिमल है जो कहाँ रहता है? क्लियर वाटर में, साफ पानी में रहता है।
तो नेचर इसको क्या कर दी है, नेचर ने इसको ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दे दी है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दे दी है ताकि ये बैकग्राउंड के अगेंस्ट इस क्या हो जाए, इसकी शेडिंग सामने नजर ना आए। बच्चे म्यूट योर माइक प्लीज। ओके, it is said about these sphelochordate landscapes that they are in sediments, that they are mostly growing animals. ठीक है, they are mostly buried. Where they are buried? They are buried inside the sand. लेकिन they have the at the same time they have a streamlined body. Streamlined कैसी होती है, जैसे कि हम फिश की देखते हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। लेकिन फिश में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी बॉडी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम मोस्टली टिपिकल टाइप पढ़ते हैं तो वो कौन सी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड शेप बॉडी होती है उसकी। इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी दे आर वीक स्विमर्स बहुत कम स्विमर्स हैं। और क्यों वीक स्विमर हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा है, दे आर बरोर्स, दे बरीड themselves inside the sand. तो वो क्या है, अपने आप को ज्यादा उन्होंने क्या किया होता है, अपने आप को ज्यादातर उन्होंने बरी किया होता है। ओके, इट इज सेड अबाउट दिस फेलोकॉर्डेट्स कि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो काफी एक्सटेंड है। एक्सटेंड कहाँ है, टेल से भी पीछे की तरफ एक्सटेंड है, फ्रॉम द टेल टू द हेड। ओके, एक्सटेंड उसकी ज्यादा फेलोकॉर्ड एक्सटेंड हुई है। नोटोकॉर्ड्स फेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो ज्यादा एक्सटेंड है, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया है स्फेलोकॉर्डेट्स। कहा गया है कि इस इनके पास क्या होता है, इनके पास मसल सेल्स है। इफ दे हैव मसल सेल्स, स्टूडेंट जब भी हम किसी चीज में मसल्स पढ़ेंगे कि दे हैव द मसल्स, या तो उसके लिए आएगा कि दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी, और क्या होगा, दे हैव द मोर कंट्रक्टाइल मूवमेंट, उनकी क्या हो जाएगी, कंट्रक्टाइल एडॉप्टेशन हो जाएगी उसमें। ठीक है, सो इट इज सेड अबाउट द cephalochordates that they have the contractile muscles. अब ये कंट्रक्टाइल मसल्स उन्हें क्यों चाहिए, उन्हें इसलिए चाहिए ताकि कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स क्या करा देता है, रिजिडिटी इंक्रीज कर देता है। किसकी, नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड की अब इनको रिजिडिटी क्यों जरूरी है, दे रिक्वायर्ड रिजिडिटी इन द नोटोकॉर्ड बिकॉज दे आर द burrows animal buried in the sand. तो जब अपने आप को इन्होंने पुश करना होता है इनटू द सेंड, तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको प्रेशर चाहिए होता है। तो उस प्रेशर के लिए ये दे रिक्वायर्ड कंट्रैक्शन, और वो कंट्रैक्शन इन्हें कहाँ से मिलती है, मसल सेल से। और इसी की कॉन्ट्रैक्शन से ये कहाँ मूव करते हैं, इसी इन्हीं मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ये मूव करते हैं इनसाइड द बॉटम, इनसाइड द सैंड। वाइल इसी मसल्स को जब ये रिलैक्स करते हैं तो दिस रिलैक्सेशन हेल्प देमसेल्फ टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें कहाँ रिक्वायर्ड होती है, इन द स्विमिंग। हमने इनका दो किस्म की हैबिटेट पढ़ा, मतलब हैबिटेट एक ही है लेकिन इनके फर्दर क्या हैं, ये ब्रोइंग एनिमल्स भी हैं, दे आर आल्सो स्विमर्स, बट दे आर नॉट गुड स्विमर्स। हमने ये पढ़ा है। क्यों गुड स्विमर्स नहीं है, बिकॉज दे हैव मसल सेल्स। जब मसल सेल्स हैं सो दे हैव मोर कंट्रक्टाइल। जब मसल सेल्स हैं तो इनको क्या हो गया, इनकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुई है, इनकी नोटोकॉर्ड और स्ट्रेंथन हो गई है। वो क्यों चाहिए, इनकी नोटोकॉर्ड को रिजिडिटी क्यों देते हैं, क्योंकि जब इन्होंने सेंड के अंदर जाना होता है, इन्होंने अपने आप को बरी करना होता है, बरीज करना होता है, सो दे रिक्वायर्ड सम कंप्रेशन अगेंस्ट द सेंड। ठीक है, इनको प्रेशर चाहिए होता है। So for that compression, for that turgidity, for that rigidity, they require contraction of muscles. On the other hand, the relaxation of these muscles are helpful in the swimming. Students, mute your mic. अच्छा students,
अनडुलेशन मूवमेंट कौन सी होती है? जो थोड़ी सा जिगजैग मूवमेंट होती है, जैसे हम स्नेक्स में देखते हैं, जैसे हम फिश में देखते हैं। तो ये अनडुलेशन मूवमेंट इज ड्यू टू दीज मसल्स। ओके, इन्हीं मसल्स की वजह से ये वाटर में भी मूव करता है, एज वी हैव ऑलरेडी रेड। ओके, हम पढ़ चुके हैं। Okay, they have actually some folds in the body. You can see here in the picture that they have some folds. आप इसकी lateral side पे कुछ folds देख सकते हैं ना? Okay, इन folds का काम है कि ये body को stabilize करते हैं during swimming. But along their folds they have also fins. और fins कौन से हैं? मीडियन डोर्सल फिन। डोर्सल मीन अबव, ऊपर वाली साइड पे, ठीक है? दो साइड होती है, वन इज डोर्सल एंड वन इज वेंट्रल। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जब आप हाथ को सीधा करेंगे तो जो हाथ की ऊपर वाली साइड होगी, एक पाम होता है, एक ऑपोजिट वाली साइड होती है, जो ऊपर वाली साइड होगी इट वुड ऑलवेज द डोर्सल साइड, वाइल द जो नीचे साइड होगी वो कौन सी? पाम वाली जो साइड होगी, जो आपकी हथेली होगी, इट बिकम एज अ वेंट्रल साइड। तो अगर हम इस यूरोकॉर्डेट को देखें तो इसकी डोर्सल साइड पे एक दरमियान में एक फिन है जिसे हम बोलते हैं मीडियन डोर्सल फिन, और एक कॉर्डल मीन टेल की साइड पे एक फिन है। जब ऐसा टेल की साइड फिन होगा तो ये फिन भी क्या करता है? बैलेंस कराता है। किसको? स्विमिंग के दौरान एनिमल की बैलेंस कराने में ये फिन्स हेल्पफुल हैं। इसके अलावा यहाँ कौन हेल्पफुल है? यहाँ पे जो इसकी वेंट्रल साइड पे, लेटरल वेंट्रल साइड पे क्या है? यहाँ पे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये फोल्ड्स क्या करते हैं? बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं, बॉडी को बैलेंस देते हैं। So here you can see the cirri, CIRRI. Can you see the cursor? It is the cirri. Okay, cirri actually क्या है? They are the projections, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स हमारे हाथ से बाहर की तरफ से प्रोजेक्ट आउट हुई है, ऐसे ही है। सो सिराय इज द सेम लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ये कहाँ से प्रोजेक्ट आउट हुई है? ये ओरल हुड से प्रोजेक्ट आउट हुई है। ओके, दे आर प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द ओरल हुड। दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट प्रोट्रूड आउट। कहाँ से निकली हुई है? ओरल हुड से। ओरल हुड से निकली हुई। इट मीन्स दे आर used in some feeding activity. Okay, सेम यहीं पे हमारे पास ओरल हुड के साथ ही हमारे पास क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। और माउथ के साथ ही हमारे पास फेरिंग्स है, विच इज अ लार्ज फेरिंग्स। और फेरिंग्स के ऊपर हमारे पास क्या है? स्लिट्स पाई जाती हैं, और इन्हीं फेरेंजियल स्लिट्स के साथ ही हमारे पास गिल बार्स भी पाए जाते हैं। ओके, सो हियर हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है सिराय पढ़ा है, जिसका काम क्या है? फीडिंग में है, यानी कि वो अब क्या करेगा? वाटर करंट से किसको कैप्चर करेगा? फूड पार्टिकल्स को करेगा। और ये कहाँ से निकले हैं? ओरल हुड से। सो वी हैव अ माउथ हियर, along with the mouth we have a larger pharynx. Larger pharynx have the gill bars as well as pharyngeal slits. So here we have an atrium. Atrium is the chamber, okay, which is around the pharyngeal region. ये pharyngeal region है ना, इसके साथ ही हमारे पास atrium है। और आर्टियम इज एक्चुअली अ फोल्ड। ये फोल्ड है किसका? वेंट्रल साइड की बॉडी का। मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स हैं इस लेंसलेट्स में। तो लेंसलेट्स में जब फोल्ड्स हैं तो एक आर्टियम भी एक फोल्ड है, ठीक है? आर्टियम एक फोल्ड है जो कि फेरिंग्स के साथ है। और आर्टियम की जो फोल्डिंग ओपन होती है वो एट्रियोपोर है। सो एट्रियोपोर इज एन ओपनिंग जो कि कहाँ से होती है? एट्रियम से होते हुए, एट्रियोपोर से ओपनिंग होते हुए वो कहाँ आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। कोई भी चीज जब एक्सपेल करनी है तो एट्रियम से होते हुए वो कहाँ से आएगी? आर्टियोपोर से बाहर आएगी। सो in the maintenance function we will discuss about the nutrition and digestion. About the sphelochordate, it is said that they are the filter feeders. Filter feeders mean they take the water inside the body and filter the water. Filter the water mean they take their they capture their feed from the water. So maybe they are
buried, total, completely buried, or partially buried. Okay, but their mouth will always pointed upward. Cilia are present on the gill bars. So the function of the cilia is to capture the food. But initially, the food is captured by the cirri. Okay, we have discussed about the cirri. Its function is to capture the food. Okay, so the larger particles also accumulate, and the contraction, the movement of cirri will throw them inside the mouth. Okay, then we have discussed about the endostyle. Where the word endostyle came, it means that they have ability to secrete some mucus. So when mucus is here, it means that it has some adhesive capability. इसमें अपने साथ कोई चीज अटैच करनी है. So यहाँ हमने क्या चीज अटैच करनी है? वाटर तो चला जाएगा, ठीक है? So with this we have to capture the food particles along this mucus. But with this, the cilia have also capability to force this food particle towards the gut tract. ओके हमने अब इसी फूड पार्टिकल को अपने पुश करना है आगे की तरफ ताकि वो अलोंग द गट ट्रैक को मूव करे. Here the digestion is both extracellular and intracellular. Okay, what does extracellular mean? Outside the body, and intracellular mean inside the body. Here we have also the mid-gut cecum. Okay, and after the mid-gut cecum we have a blind pharynx. But on the ventral side we have a anus. Okay. Mid-gut cecum extend anteriorly, and towards the right here we have an anus. Towards the left we have the anus, and towards the right we have the pharynx. So towards the right from the pharynx, here the animal secretes some digestive enzymes for the digestion or for the breakdown of food particles. When we are discussing about the circulatory system, it is said about the cephalopods that they do not have a true heart. So true heart means the heart function in the body as a contractile organ. So what is the procedure of propelling the blood? They propel by the contractile waves. Okay, so the cell have itself have some amoeboid cells that move in the open spaces where they have to move. So they have not a true heart. इनके पास एक heart नहीं है, लेकिन इनके heart का काम जो contractile करता है वो कौन करता है? इनके पास कोई contractile waves आती हैं. How? क्योंकि इनके पास कुछ amoeboid cells होते हैं. Amoeboid cells जो move करते हैं. Okay. So along with these blood vessels, they have some excretory tubules. It means that they have active transport of materials between the excretory tubules and the blood vessels. Okay, इसका मतलब ये है कि एक्सक्रीशन जो है इसकी वो अलोंग किसके है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही हैं दोनों प्रेजेंट. मतलब है कि एक्टिव इनकी क्या हो रही है? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. किस किस के दरमियान में? ब्लड के दरमियान और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के दरमियान में. वहां से वेस्ट मटेरियल फौरन ही एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में जा रहा है. ठीक है. हमने जैसे यूरोपोडेट के बारे में पढ़ा था. दे आर मोनोइशियस while cephalopods are dioecious. Again, we have discussed about the gametes that they shed into the outer environment through the artiopore. Artiopore हमने क्या पढ़ा था? एक पोर पढ़ा था, एक ओपनिंग पढ़ी थी जो कहाँ थी? आर्टियम के पास थी. तो गैमीट्स कहाँ जाएंगे? आर्टियम में जाएंगे. आर्टियम से कहाँ जाएंगे? आर्टियोपोर से होते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएंगे. External environment में they will follow the external fertilization and give rise to a bilaterally symmetrical larvae. The larvae would be more energetic.
फ्री स्विमिंग होगा, ओके। बट मेटामॉर्फोसिस होगी तो जो एडल्ट में कन्वर्ट होगा इट वुड बी सेटल्ड टू अ सबस्ट्रेट, ओके, इसको ससाइल हो जाना चाहिए। Students, I don't know what's here. Uh, why these showing here? I don't know. Let me check. Excuse me, ma'am. मैम शो हो रही है बच्चे? मैम नहीं तो स्लाइड नहीं शो रही आपकी स्क्रीन। Can you see the मैम जी slides? Hmm. नहीं शो हो रही। Now, अब देखो. हाँ हो रही है Okay. मैम। Okay. Next is the phylogenetic considerations. Phylogenetic mean what is the relation? Can you say that there is some relation between hemichordates and chordates and chordates and the further vertebrates? So there is a connection between the chordates and hemichordates. What is that? First is the tadpole larvae, tadpole-like larvae. Then they have some characteristics that are of hemichordates like notochord, post-anal tail, and endostyle. ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब जब भी हम कनेक्शन देखते हैं या हम एवोल्यूशनरी कोई कंसिड्रेशन देखते हैं, फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन देखते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि जो हमारी क्लास थी या जो हमारा फाइलम था, वट एवर हम जो जिसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि इनमें और बाकी तमाम में एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नो, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होंगे, बट क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैरेक्टरिस्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होना ज़रूरी नहीं होते। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते जैसे कि हेमिकॉडेट्स और कॉडेट्स में कैसे कुछ उनका कनेक्शन बन रहा है टैडपोल लार्वी की वजह से, नोटोकॉर्ड की वजह से, एंडोस्टाइल की वजह से और पोस्ट एनल टेल की वजह से। ठीक है। सिमिलर ये कहा जाता है कि अकानोडर्म्स में भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके लिए हम ये कहते हैं कि ये अकानोडर्म्स को कहा जाता है कि ये मे बी एंसेस्टर्स हों फॉर कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक बच्चे आता है कि हमारे जो जैसे जिसमें अभी हमने यूरो कॉर्डेट्स पढ़ा, स्पेलो कॉर्डेट्स पढ़े, दे आर they have the larva with the mobile with the active larvae, लेकिन क्या है बाद में उनके पास वही लार्वी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीडेंट्री एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही है। अब क्या है कि यही चीज आगे जाके जब हम आगे इसमें वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, यही चीज आगे जाके एडल्ट में एक्टिव हो जाएगी। क्या चीज एक्टिव हो जाएगी? दैट इन द स्फेलोकॉर्डेट्स, इन द यूरोकॉर्डेट्स, the larvae is active while the adult is sedentary. Okay, while in the vertebrate, सब phylum vertebra जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, सपोज फिश पढ़ेंगे, मैमल्स पढ़ेंगे, एनिमल्स पढ़ेंगे, उनमें सब क्या है, उसमें क्या हो जाएगा, अडल्ट एक्टिव हो जाएगा। तो इस टर्म को बोलते हैं पेडोमॉर्फोसिस।
पेडोमॉर्फोसिस बच्चे क्या टर्म होती है? पेडोमॉर्फोसिस ये टर्म होती है जो एक एंसेस्टर में एक करेक्टर होता है वो जाके डिसेंडेंट्स के करेक्ट जो एंसेस्टर के लार्वी में वो जो करेक्टर होता है वो जाके डिसेंडेंट्स के अडल्ट में वो जाए। ठीक है, अब एंसेस्टर्स कौन थे यहाँ? यूरोकॉर्डेट्स। एंसेस्टर यूरोकॉर्डेट्स के जो लार्वी है उसमें क्या है? एक्टिव मोटाइल है, मोटाइल नहीं एक्टिवली। ठीक है, और जो उनके एडल्ट्स हैं वो क्या एक्टिव। हैं? वो सीडेंट्री हैं, मैम एक ही आप जगह रहते हैं। जबकि यही जाके जब हम यही बात जाते हैं अपने वर्टिब्रेट्स में, तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में जो लार्वी होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, जबकि उसी के आगे उसके जो एडल्ट्स होंगे वो एक्टिव बन जाते हैं। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं पेडोमॉर्फोसिस। मैम जी। बच्चे आपकी आवाज आ रही है? यस मैम, क्वेश्चन था मुझे। अच्छा बच्चे, आप ना मुझे इनबॉक्स कीजिएगा क्वेश्चन अपने। आपकी मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, ओके मैम। लेक्चर अभी अभी लेक्चर रहता है, लेक्चर के एंड पे आप मुझसे 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, अर्जेंट था थोड़ा। जी बच्चे। मैम एंड पे कर दूंगा। ओके ओके। हम जब सब फाइलम पढ़ रहे हैं तो हम सब फाइलम में एक पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। The subphylum Vertebrata is most successful among the chordates. ओके, इसमें हम फिश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम फर्दर मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इसमें हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे जो कि हमारे वर्टिब्रेटा में आएंगे। सो दे इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्रेटा में क्या होता है? एक्चुअली हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कैसे किया जाएगा? बाय द बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, वर्टिब्रा किससे बनी होगी? कार्टिलेज से, या फिर बोनी स्ट्रक्चर होगी। तो फिर वो क्या करेगी? रिप्लेस करेगी नोटोकॉर्ड को, मे बी कंप्लीटली और पार्शियली। देन वर्टिब्रेट्स कैसे डेवलप होते हैं? वर्टिब्रेट्स को कहा जाता है कि कैसे वो एडवांस्ड हैं। उनके पास डिग्री ऑफ सेफेलाइजेशन ज्यादा है। वो कैसे है? वो उनके पास ऐसे है, दे आर मोर स्पेशल, दे हैव मोर स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स। और वो कहाँ है? एग्रीगेट में इन द हेड, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन। ओके, अब उनका जो ब्रेन है उस वो कहाँ है? फिर उसको कवर कर दिया है स्कल ने या क्रेनियम ने। सो जो भी हम पढ़ते हैं हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्कल या क्रेनियम आ जाएगा, मोर स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स आ जाएंगे, और नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रा रिप्लेस करेगा। सबसे वर्टिब्रेट्स में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्लास, वो हम पढ़ेंगे फिश। और फिश के लिए कहा जाता है कि ये 400 मिलियन ईयर्स अगो ये आई थी। ठीक है, और फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। और ये हमारी है लिंकेज है डिफरेंट ड्यूटोस्टॉर्म फाइलोजेनी है फाइलोजेनी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आए, और डिफरेंट ग्रुप्स में जो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट फाइलम्स आए, उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। और उनमें जो एक लिंक बन रहा है बिटवीन द हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट है, वो किसकी वजह से बन रहा है? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड्स की वजह से और फेरेंजियल स्लिट्स की वजह से। So students, this is all about today lecture.